Okay, ma'am, you are live now. Okay, so thank you. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to you and my screen is also visible to everyone. So, in the last class, I discussed about business ethics and CSR, which I told you that we will also be doing this in when we'll reach in final year in auditing and corporate governance. So, I did it in brief as per the content of your syllabus. We did business ethics and CSR in the last class yesterday, and I have also shared the PPT of all the 7 chapters again on the WhatsApp group. So if you have any queries regarding those chapters, the PPT, study material, anything, please post your queries in the chat box, else I'll start with the new chapter today. Okay, then I'm starting with a new chapter. Um, the next chapter that we are going to study is chapter number 8, Business and Social Entrepreneurship. Any idea about what entrepreneurship is? Entrepreneurship क्या होता है? आजकल बहुत हर जगह हम बात करते हैं entrepreneurship की, इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by entrepreneurship? हम्म क्या समझते हैं आप entrepreneurship से? Please drop your answers in the chat box. Okay, just a minute. Fine. So we'll in this chapter we'll be studying about the concept of entrepreneurship. What are the characteristics of entrepreneurship? एक अच्छे entrepreneur की क्या qualities होती हैं, क्या उसके functions होते हैं, business entrepreneurship में और social entrepreneurship में क्या difference होता है. Fine. Difference between social and commercial entrepreneur. We'll discuss about social entrepreneurship. ऐसा क्या concept है जो आजकल बहुत in है. I mean everywhere we hear this term कि social entrepreneur हैं या we are working for the society so we are social entrepreneur. We'll discuss about them in detail. And what are the challenges and what do you think, what is the social entrepreneurship stand from the point of view of modern society? What are the challenges faced by social entrepreneurs? Examples, entrepreneurship and intrapreneurship, then basis of comparison, entrepreneurial process, sources of business ideas, approaches to generating ideas, and feasible स्टडी प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम ये सब डिटेल में करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप की ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होता है देखो ऑन्टरप्रेन्योर कौन होता है ऑन्टरप्रेन्योर वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को लोगों को साथ लेके चलता है और लोगों को साथ लेके चलता है फॉर द पर्पस ऑफ द अटेनमेंट ऑफ वन कॉमन गोल So he is the one who initiates, who maintains the profits by production, distribution of goods and services. It includes risk management, it includes creativity, innovation, planning, organizing, staffing, directing and controlling. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख रही हूँ इट्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टरिंग कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग इसको हम कहते हैं पॉज्ड कॉब पॉज्ड कॉप क्या होता है प्लानिंग और प्लीज चैट बॉक्स देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग ओके सो पॉज्ड कॉप की डेफिनेशन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है वो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कस्टमर्स की नीड को टैप करता है एंड इट convert those opportunities into success by tapping onto the consumer demands by achieving the long term gains so this word entrepreneur is derived from the french
फ्रेंच वर्ड दैट इज entrepreneurial, which means to undertake, मतलब जो एक कोई भी काम को कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई कर रहा है, उसका रिस्क ले रहा है, उसमें इनोवेशंस को यूज कर रहा है, तो वो कौन है? वो एंटरप्रेन्योर है. सो वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर इन आवर ओन, आई मीन इन आवर ओन टर्म्स. आप अपने रिलेटेड टास्क के लिए एंटरप्रेन्योर हो, मैं अपने रिलेटेड टास्क के लिए एंटरप्रेन्योर हूँ, बट इट डेफिनेटली इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके साथ हम मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और उससे हम प्रॉफिट्स को अटेन करते हैं. नाउ एंटरप्रेन्योर जो है, मैं अभी तक आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में बताती थी, बट दिस एंटरप्रेन्योर has moved ahead and it has included 5 M's. अब ये 5 M's कौन से होते हैं आपके? 5 M's आपके होते हैं men, material, machinery, money and methods. आपके methods को भी हम entrepreneur में include करते हैं. तो entrepreneur is one who creates new business, who is an economic agent, who bears most of the risk and enjoy the rewards. Okay, so he is commonly seen as innovator, the one who generates the idea, how to undertake the activities, how to undertake, how to define the roles and responsibilities of different people, coordinating with them in order to attain the organizational goals. So this is a combination of what? Men, machine, material, money and methods. हम सोशल रिसोर्सेज, हम लेबर के साथ काम कर रहे हैं, हम मशीन के साथ काम कर रहे हैं, हम मटेरियल, मटेरियल आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, आपके सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं. मनी, हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट, एंड मेथड इज द प्रोसीजर थ्रू विच यू डू योर वर्क. ओके, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को हम प्रोसीजर बोलते हैं, बाय विच यू अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज or other sort of activities in order to attain your organizational goals. He is the one who makes sure कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एक इंडिविजुअल के गोल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन अगर हम उन एम्प्लॉयज की नीड्स को केटर नहीं करेंगे, हम उन एम्प्लॉयज के गोल्स को केटर नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स को कोऑर्डिनेट करके कॉमन गोल्स पे अलाइन नहीं करेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट. कितने कितने दिन तक आपके लेबर आपके साथ जुड़ी रहेगी? 1 साल, 2 साल, अल्टीमेटली टर्नओवर होगा. जब मुझे लगेगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहां पर मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे वो एक्सपोजर मिल रहा है, मेरी नॉलेज क्रिएशन हो रही है, नॉलेज एनहांसमेंट हो रही है, आई विल लीव द फर्म. ओके, सो गॉन आर द डेज जब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होती थी और लेबर को दे वर ट्रीटेड बैडली, एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता था, दे वर ओनली solely motivated by means of money. But nowadays self esteem needs भी, Maslow's hierarchy of needs पढ़ा होगा ना, तो वहां पर ये हम देखेंगे कि ये एक एंटरप्रेन्योर का रोल होता है कि हाउ टू डील विद मेन, मशीनरी, मटेरियल, मनी एंड मेथड्स. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की. हम कह रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो काफी सारे लोगों को लेके चलता है और उसके बाद वो अपने कॉमन गोल्स को अटेन करता है. दिस इज व्हाट वी स्टडीड, हमने यही पढ़ा ना अभी. तो इस डेफिनेशन से हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? देखो, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, सबसे पहले तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हम कोई चैरिटी करने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं है. इफ वी आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली वी आर डूइंग इट टू अटेन दी to earn some profits. So it's an economic activity which deals in trading of goods and services. It involves innovation. मैं चॉक एंड बोर्ड मेथड से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पीपीटी से बस देख देख के पढ़ाए जा रही हूँ, बुक दे दी, आप अपने आप पढ़ो, तो आपको क्या लगता है? क्या आपकी उतनी, भाई अगर मैं बुक बता दूंगी और आप अपने आप पढ़ लोगे तो टीचर की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना? या फिर मैंने आपको पीपीटी दे दी, मैं पीपीटी में से देख देख के बढ़ा रही हूँ, देख देख के तो भाई तुम खुद भी पढ़ सकते हो. तो व्हाट इज माय रोल एज अ टीचर? मैं इनोवेशन कहाँ ला सकती हूँ एज अ टीचर? मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके कंसेप्ट को, सो दैट इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल टू यू, it becomes easy for you, and also it helps you to attempt the paper more perfectly.
जब हम लोग एज एग्जामिनर्स आप लोगों की आंसर शीट्स को चेक करते हैं तो वी मेक श्योर, देखो डेफिनेशन तो कोई एक 5th क्लास का बच्चा भी रट के लिख लेगा, है ना? तो आपके पेपर में वो एक्स्ट्रा क्या है जो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा? मैं जब पेपर्स चेक करती हूँ आप लोगों के, तो आई ऑलवेज कीप इट इन अ माइंड कि स्टूडेंट्स हैव कोटेड रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, गॉट इट। हम लोगों की एक गाइडलाइन होती है कि आपको किस तरह पेपर चेक करना है, तो जब हम पेपर्स को चेक करते हैं तो वी ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि स्टूडेंट्स हैव कोटेड एग्जांपल्स इन थियोरेटिकल पेपर्स, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन, आई मीन आपका पेपर एक अलग लेवल पे स्टैंड करेगा। Okay, it involves innovation. It's a goal-oriented activity. Definitely, I'm working as an entrepreneur. I'm working as an entrepreneur. I am a teacher. And what is my goal? मतलब मेरा गोल क्या है कि बस बच्चे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 4 बजे चले जाएंगे, क्लास हो जाएगी, मुझे मेरी क्लास के पैसे मिल जाएंगे. That's it? No. What is my vision? What is my mission? What do I expect from my students? That is the goal. मैं किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ तो आप लोगों को पढ़ा रही होंगी ना, या आप लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप लोगों का भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ भाई हमारा ये गोल है, इसीलिए हम 3 बजे नेहा मैम के साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं. ओके, देन वैल्यू क्रिएशन. व्हाट वैल्यू एम आई एडिंग being an entrepreneur in the society to my customers? Okay, giving good quality products is my responsibility. मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही हूँ, उसको कम रीजन कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ये तो मेरा गोल है ही, पर मैं क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ? व्हाट मैसेज एम आई गिविंग टू द सोसाइटी? उसको हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन. जैसे मैं आई, आपको मैंने पढ़ाया, बॉम्ब का चैप्टर 8 हो गया, चलो काम खत्म, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, दैट्स इट. तो मैंने इससे क्या मैसेज दिया आप लोगों को कि डोंट बी सीरियस इन योर एग्जाम्स, यही मैसेज दिया मैंने. सो व्हाट वैल्यू हैव आई क्रिएटेड? I haven't created any value, rather I have devalued the concept of education. Got it? So value creation is necessary, enterprise creation is necessary. एक entrepreneur से फर्म को जाना जाता है, उसकी गुडविल को जाना जाता है. आप टाटास को जानते हैं या रतन टाटा को जानते हैं? आप अंबानी रिलायंस को जानते हैं या आप मुकेश अंबानी को जानते हैं? रिलायंस इज अ फॉरगॉटन नेम. अब सबको ही बस मुकेश अंबानी, रिलायंस, बस. मुकेश अंबानी हैज बिकम द फर्स्ट नेम, है ना? तो एक एंटरप्रेन्योर से एक एंटरप्राइज की पहचान होती है. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्राइज को क्रिएट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, अपने लोगों को क्रिएट करता है. ओके, then there is this risk bearing capacity. Of course, in order to attain the higher profits, I have to bear the higher amount of risk. Higher the profit, higher the risks. Okay, then managerial skill and leadership function. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का एक अच्छा लीडर होना, उसमें वो एक्सपर्टीज होना, उसमें वो स्किल्स होना, so that he can get the work done by others. काम करवाना अलग बात है कि चलो मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया और आपने बना लिया, ठीक है, बट उसको इफेक्टिवली करवाना एक अलग बात है. मैं आई, मैंने आपको पढ़ाया, काम खत्म, चैप्टर 8 मेरी तरफ से हो गया, पर क्या मैंने उसे इफेक्टिव तरीके से करा है? क्या मैंने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को के लिए प्रिपेयर कर दिया है? नहीं किया ना. तो इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप फंक्शन. एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. Because he is the entrepreneur, he is handling men, material, machine, methods and money. He is the one who is the organizer. He is the one जो कि ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज को, मशीनरीज को, मटेरियल को, फाइनेंस को, सबको ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है टू अटेन योर फाइनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ओके, then what are the qualities of entrepreneur? Yes, the slide is there in front of you. Can anyone explain it? Please drop your answers in the chat box. Yes, drop your answers in chat box quickly. What do you think कि ये तो मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके अलावा क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
देखो, सबसे पहले रिस्क को अज्यूम करने की कि नियर फ्यूचर में वी आर गोइंग टू फेस दिस रिस्क इन द सोसाइटी इन आर हमें जो है न्यू बिजनेस विद रिस्क एंड प्रॉफिट, जस्ट अ मिनट क्लारा, there are few messages by the students which I didn't see. Is my slide visible? Please say yes or no, because somebody has written कि the slide is not visible. I hope my slide is visible to everybody. Okay, good personality, well understandability, problem solving nature, very good. देखो, जब हम एक उसकी लीडर आई मीन एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी क्वालिटीज की। सबसे पहले उसकी रिस्क अज्यूमिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क उसे पता हो, उसे हैंडल करने आते हो और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना होता हो। अबिलिटी टू मार्शल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज व्हाट, आपके पास मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, जितने भी रिसोर्सेज हैं, यू हैव द अबिलिटी टू tap them effectively and efficiently. You have the ability to organize them, to monitor them, to regulate them, and to make the people you work using those resources and attain organizational goals. You must have technical knowledge and you must be willing to change. Only change is constant in life. अगर जैसे पेंडेमिक आया तो हम क्या कर सकते थे, हम टीचिंग बंद कर देते कि भाई कैसे ही पढ़ाएं, चौक बोर्ड नहीं है और टीचिंग थोड़ी ना लैपटॉप पे हो सकती है। But we accepted this change, we imbibed this change into us and we acquainted ourselves into this change कि भाई अब जब घर से निकल ही नहीं सकते तो हम टीचिंग को, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तो कंटिन्यू करेंगे ना। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया, हम ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग पर हमने स्विच किया। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज योर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योर की हम जब से बात कर रहे हैं कि वो मेथड्स को ऑर्गेनाइज करता है, वो करता धरता होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एक्चुअली में करता क्या है। सबसे पहले ही इज द वन हु जनरेट्स द आइडिया कि बिजनेस हमें खड़ा करना है, किस तरह का बिजनेस करना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका मिशन क्या होना चाहिए, उसको हमें, उसके लिए हमें कितना कैपिटल चाहिएगा। Got it? How much money do I need in order to run my business, in order to start my business? How can I raise funds? How can I procure the raw materials? Just a second, somebody has messaged. Wait a minute, actually. Okay, now what I was saying कि उसके लिए फंड्स जनरेट करना, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे वो प्रोक्योर करना, मशीनरीज आपको क्या चाहिए, क्या लेटेस्ट करंट टेक्नोलॉजी आपको चाहिए इन ऑर्डर टू गो अंडरगो प्रोडक्शन, उसके लिए रिस्पेक्टिव रिसर्च को हैंडल करना, डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। इफ यू रिमेंबर वी डिड बिजनेस स्ट्रक्चर उसमें हमारी फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। सो यू हैव टू डिटरमिन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, यू हैव टू रिक्रूट पीपल अकॉर्डिंगली। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे, आप HRM पढ़ोगे, तो उसमें यू विल स्टडी इन डिटेल कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कैसे होता है। रिक्रूटमेंट RST, रिक्रूटमेंट इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, वो पूरा बड़ा यूनिट है। सो अभी हम उसको नहीं कर रहे, लेकिन RST क्या मतलब, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो मैन पावर को रिक्रूट करता है, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है, उनकी ड्यूटीज अलॉट करता है, एंड ही इम्प्लीमेंट्स द प्रोजेक्ट। सो ही इज द वन हु
starts all the activities and coordinates with all the other activities. Now talking about business and social entrepreneurship, कभी आपने ये concept सुना है social entrepreneurship का? Have you ever heard of this term social entrepreneurship? चलो अच्छा, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, एंड ही इज द वन हु आइडेंटिफाइज द opportunities and converts them into profitable businesses. यही किया था ना हमने. अब सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सोशल एंटरप्रेन्योर आपका होता है जो कि जस्ट क्लास सोशल एंटरप्रेन्योर आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है. सोशल एंटरप्रेन्योर उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है एंड ही ट्राइज टू ब्रिंग इन द सोशल चेंज by employing various principles, processes, operations. So he is the one who brings the change into society's problem. आपकी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, I mean, किसी ने सती सिस्टम भी अबॉलिश किया, कोई आया जिसने सती सिस्टम भी अबॉलिश किया होगा, ठीक है, सोसाइटी में चेंजेस आए. ओके, कोई होगा कि सॉरी क्लास, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारी सोसाइटी के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता कि क्या है, बस चले जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही लाइफ होती है, सब लोग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोजर ही नहीं है, हमें राइट ही नहीं है अपने राइट्स को एंजॉय करने का, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू डॉट डॉट डॉट, बट डू वी एक्चुअली have the right to enjoy these rights? No. Whenever somebody speak, उसको कर्ब कर दिया जाता है. तो सोशल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो सोसाइटी की आवाज होता है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिमिनेट करता है. ओके, सो सोशल एंटरप्रेन्योर इज द वन हु कंबाइन कॉमर्स एंड सोशल इश्यूज. आपको पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं, पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है. ही डजंट मेजर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी, रादर he measures the success in terms of to what extent he could eradicate the problems of the society. He identifies the area, works efficiently, solves the problem, spread awareness and persuade people to part of change. ठीक है, मतलब मैंने चेंजेस ला दिए, मेरे चेंज लाने से क्या होगा और मैं कितना चेंजेस लाऊंगी, मैं कब तक चेंजेस लाऊंगी. Somewhere I have to persuade, I have to induce other people also to be a change, to bring change in the society, to identify the problem, to bring out the solution, to help people to identify the problem. Okay. So so basically he is an inspiration, he is a role model, he uses user friendly, ethical, understandable language and means to relate with the local people, to grab their ideas and implement it. Okay, so he is a good entrepreneur, he is an entrepreneur with understanding, who doesn't only work for money but rather for betterment of the society as a whole. Okay. नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हमने ये कहा कि सोशल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसमें चेंजेस को लाता है. ठीक है, हमने यही बात करी. सो दिस इज अचीव्ड अ लार्ज स्केल सोशल चेंज. ही फोकसेस ऑन द social and ecological change, then innovate when looking for a solution and use feedback to adapt and refine. तो वो क्या कर रहा है, because he is a changing agent, he is bringing the change into the society, so he is using his innovation, he is persuading other people, he is using innovation and feedback of the people
so that he can implement that feedback and refine his policies. I hope I am clear to you all with up till here. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में फ्री सर्विस देते हैं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फ्री सर्विस नहीं देते हैं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फ्री सर्विस देंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? वो कॉमर्स को और सर्विसेज को कंबाइन करते हैं. दे आर बेसिकली पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट. कभी सुना है आपने? शार्क टैंक आप लोग देखते होंगे. एक मिनट, मैं इस क्वेरी का आंसर कर दूं. I have already told you n number of times to refer which book. It is my book that I have written for the first year students, BOM, Business Organization and Management by Dr. Shweta Kalra and Dr. Neha Singhal. You can get it from Scholar Tech Publications. I have already shared the link with you on the group. I'll share it again. Okay. Now, सोशल एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड, ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज ही डूइंग इज ही इज इनटू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं. जैसे कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे आते हैं जो कि पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट करते हैं. जैसे एक आया था सब्जी कोठी. सब्जी कोठी में वो क्या कर रहे थे कि क्योंकि हमारे किसान ज्यादातर जो हैं वो सब्जियों के खराब हो जाने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उसकी सेलिंग नहीं हो पाने से दे सफर ह्यूज लॉसेस. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिजाइंड अ कार्ट which let the fruits and vegetables be fresh for around a period of 1 week. Similarly, कल के एपिसोड में एक डिवाइस थी जिस डिवाइस से आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा फ्रूट या कौन सा वेजिटेबल जो है वो सही है या खराब होने वाला है. तो ये क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर हेल्पिंग आवर फार्मर्स टू आइडेंटिफाई टू नॉट टू बियर द लॉसेस. ठीक है. अब अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? एक मॉडर्न सोसाइटी का क्या स्टैंड होगा या एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्टैंड होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी? अब मैं कोई पर्पस ड्रिवन लेके प्रोडक्ट बना रही हूँ तो लोग मुझे पागल ही कहेंगे कि देखो ये चलिए समाज सुधार में, है ना. लेकिन मैं नहीं तो कोई और, तो किसी को तो करना ही पड़ेगा ना. या सब कुछ ऐसे करेंगे तो हम सोसाइटी तो फिर ऐसे ही चलती रहेगी. इसका मतलब nobody is ready to bring in change and then we should stop complaining कि हमारे politicians कुछ नहीं करते. Why are we waiting for others to bring a change? Why can't we be the member of these changes? Why can't we be the one who are initiating these changes? So when I'm talking about, somebody has posted a query. Please let me go through that. Just a minute. हाँ, so we were talking about social entrepreneurship. Social entrepreneurship, they uses a strategy. They have the financing क्योंकि government also and some good entrepreneurs also, they also help these budding social entrepreneurs to grow. Okay, तो उनको फाइनेंसिंग इजी मिल जाती है. उनकी मार्केटिंग, गवर्नेंस टेक्निक्स, मार्केट फेलियर होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि पर्पस ड्रिवन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना ही अपने आप में एक चैलेंज है. हम लोगों को प्रॉब्लम तो पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, और हम प्रॉब्लम है नहीं, हम उसका सोल्यूशन पहले दे रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा? देयर आर मोर चांसेस ऑफ मार्केट फेलियर. सो आई हैव टू हैव माय मिशन एंड माय विजन in order to have the product be accepted in the market. Then I have got resource mobilization, and then last one is performance management. How my performance is measured? What do you think how it is measured? मैं सपोज एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं तो मेरी परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्या तरीका है? Definitely I am engaged in commercial activities, so profit is one such way of identifying कि how well my product is accepted in the market.
Another thing is, to what extent was I able to eradicate the problem of the society? Got it? So this is how the performance of a social entrepreneur is measured. Okay, moving on to the next, that is challenges faced by the social entrepreneur. Social entrepreneur, पहले तो हमारी, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इस टर्म को ही एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है. मतलब हम ये चीज ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि देयर इज समबडी हु इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी. हम कहते हैं पागल है, देखो क्या काम कर रहा है, अपना काम धाम छोड़कर तो समाज सुधारने में लगा हुआ है, ये हम बोलते हैं ना. तो सोशल एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है. देयर इज रेजिस्टेंस एंड डिले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज. चेंज कोई एक दिन में तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स कोई एक दिन में सॉल्व नहीं होंगी, वो भी तब जब हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं. ठीक है, तो उस केस में बहुत डिले हो जाता है और वो डिले को एक्सेप्ट करने में आपका मोटिवेशन खुद कम हो जाता है कि यार मैं तो इतने टाइम से प्रोडक्ट की सेल कर रहा हूँ और इसकी सेल तो हो ही नहीं रही है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये प्रोडक्ट भी कोई प्रोडक्ट है. या जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट होती है या स्पंदन करके एक वो इंस्ट्रूमेंट आया कोविड के टाइम पे, पीपीई किट लोगों ने पहनी, तो when they used to remove that PPE kit, डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे तो वो पूरा स्वेट और गर्मी और उनको बड़ी हेल्थ इश्यूज रहने लग गए थे उस टाइम पे. तो somebody came up with this idea कि पीपीटी किट में आपका वेंटिलेटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए. वेंटिलेटर मतलब वेंटिलेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसके लिए उसने पीपीई किट में इनबिल्ट फैन लगाया. तो somebody thought of the problem and started a business on it. Measures impact, non-availability of adequate funds. Not all of us, जैसे हम entrepreneur देखेंगे तो सारे investors भी easily purpose driven products में invest नहीं करते हैं. They want money and they want quick money. Money तो उन्हें social entrepreneurship के केस में भी मिल जाएगी, पर quick money, उसके लिए it takes time. Okay. The next part is inability to attract and retain qualified staff. देखो सबसे पहले तो ऐसे प्रोडक्ट्स की को प्रोडक्शन के लिए वी नीड स्टाफ, वी नीड ट्रेन्ड स्टाफ. और फिर क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े डिले हैं, तो अपने स्टाफ को रिटेन करना, अपने स्टाफ को ट्रेन करना और रिटेन करना, दोनों ही एक एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज है. Then we have implementation hurdles also. As I told you that the problem with social entrepreneur is that first of all he has to make the other people understand about the problems. कि ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है और क्योंकि ये प्रॉब्लम है तो मेरे पास सोल्यूशन है. तो आधे लोग कहेंगे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इसने ये प्रॉब्लम बता दी, नहीं तो पहले भी तो जी रहे थे, है ना. तो सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बहुत हर्डल्स उसके रास्ते में आते हैं. नेक्स्ट इज these are the various examples. Somebody asked me about the examples of social entrepreneurs, so these are the examples. सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेश्वर पाठक मोहम्मद यूनुस एंड ग्रामीण बैंक के हैं, अंशु गुप्ता गूंज के हैं और उर्वशी गुप्ता शेफ के हैं. Okay, there are other social entrepreneurs also. Mr. Karthik for Pea Shoot, then Josh Talks है आपका, where the upcoming startups या budding entrepreneurs they share their journey about how they started their journey to an entrepreneurship. तो जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हाउ यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू गिव द डेफिनेशन. आई एम राइटिंग इट हियर. एंटरप्रेन्योरशिप पे इन केस आपको क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन बाय ऑथर, सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स, थर्ड पॉइंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव. ओके, एंड लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूजन. मेक श्योर आपका कोई भी थियोरेटिकल पेपर होता है तो उसमें आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरूर लिखने हैं. कंक्लूजन हैज टू बी देयर. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन.
Now moving on to the next part is your entrepreneurship versus intrapreneurship. इंट्राप्रेन्योरशिप का भी वर्ड सुना है, क्या होता है? अच्छा, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप तो अब आपको बता दिया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है? Intrapreneurship is where an individual integrates risk taking within his corporate management. जैसे entrepreneurship में तो क्या होता है ना कि एक entrepreneur है, वो रिस्क ले रहा है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है इन दी होप ऑफ प्रॉफिट. ओके, इंट्राप्रेन्योरशिप में he is nothing but an entrepreneur within the boundaries of organization. It is the act of behaving like an entrepreneur while working with the large organization. जैसे several top executives जो हैं, they are nothing but the, जो आपकी देखो कंपनी को चलाता तो एक हेड ही है जो आपका सीईओ होता है, बट अंडर सीईओ देयर आर सेवरल टॉप एग्जीक्यूटिव्स व्हिच आर द एंटरप्रेन्योर ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट्स. उनको हम क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर. Because they are the chief executive of their subsidiary, their department, their branch. They perceive and exploit the business opportunities within the existing enterprise. जैसे सपोज मैं आपका बॉम्ब सब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है? अब एसओएल के हेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर केबी गुप्ता सर हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूँ इसकी बॉम्ब की, तो बॉम्ब के लिए आई एम द इंट्राप्रेन्योर. ओके, हाउ इज जोश टॉक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? वुड एनीवन लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? जोश टॉक्स क्या है? सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर बताइए, जोश टॉक्स क्या है? Who is this? Somebody has asked me this question. Vaibhav, can you please give me a reply? What is Josh Talks and what does it do? जोश टॉक्स क्या होता है वैभव? प्लीज पोस्ट योर आंसर. मतलब जोश टॉक्स क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. वैभव, जोश टॉक्स कैसे स्टार्ट हुई या व्हाट इज जोश टॉक्स? एक मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, क्या होता है इसमें? ओके, जोश टॉक्स जो है कि अगेन मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट इट स्टार्टेड विद कि हाउ people various people, they come on this platform and they share their journey about their journey on how they overcame the hurdles in their life and became an entrepreneur or could attain what they have attained right now in their lives. Okay, so intrapreneur I have discussed. Next is your entrepreneurial process. एंटरप्रेन्योर का अगर मैं प्रोसेस आपसे पूछूं, मैंने आपसे एंटरप्रेन्योरशिप की पास बात करी, तो एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर का बहुत जरूरी है अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस आइडिया को जनरेट करना कि हाउ यू कैन टैप दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू अ बिजनेस आइडिया, हाउ कैन दिस बिजनेस आइडिया बी सेलेक्टेड, how you can extract the profit from this business idea. वो आप feasibility study करते हो, then there is this project appraisal होता है, project report prepare करते हो, and in the end you prepare a business plan कि this is how you are going to achieve your road to success. Okay, I hope I am clear with the process कि सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हो. अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं मार्केट में अवेलेबल. आपने स्पीकर का ही प्रोडक्शन क्यों चुना? उसके लिए कौन सी मार्केट होगी, किस तरह का स्पीकर होगा, कैसे प्रोडक्शन होगी, क्या कॉस्ट रखेंगे, कितना पैसा चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितने लोग चाहिए, एंड देन इन द एंड you actually execute your all planning. Okay, and the last part of this chapter is
बेसिक कंसिडरेशन इन द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मुझे एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करनी है, कोई भी हो सकती है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, किसी भी तरह की आपको एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करनी है, तो उसके लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? यस, जस्ट अ सेकेंड। What are the requirements for the same? सबसे पहले you need to select the business कि आपका क्या business होगा, वो उसका क्या size होगा business का, okay? Then location of the business कि आपके business की जो है location कहाँ पे होगी, so that men, material, machinery, methods and money are easily available to you. यू हैव टू सेलेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप कि आप में कौन सी ओनरशिप चाहिए, आपको डेट इक्विटी फॉर्म चाहिए, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए, एनजीओ चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान योर फाइनेंस। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ कंपनी, हाउ मच यू आर गोइंग टू रेज द कैपिटल एंड बाय विच मीन्स। आप फाइनल ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आप लोग स्टडी करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। जैसे मुझे पैसा रेज करना है, आई नीड मनी फॉर माई बिजनेस, तो हाउ कैन आई जनरेट, हाउ कैन आई रेज द फंड्स, कितना डिबेंचर्स, कितना लोन, कितना इक्विटी, उसका बैलेंस, सो दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इफेक्टिव एंड मिनिमम। ओके, देन प्रोविजन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। आपका जैसे आजकल क्लाउड कंसेप्ट बहुत चल रहा है, रेस्टोरेंट्स की जगह लोग क्लाउड किचन कंसेप्ट बहुत चलाने लग गए। तो क्यों क्लाउड किचन? इसलिए क्योंकि अगर आपका फिजिकल प्रीमाइसेस होता है तो रेंटल चार्जेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बट क्लाउड किचन में वो सब नहीं है। तो प्रोविजन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर, हाउ मेनी लेबर यू रिक्वायर, एंड then finally launching your enterprise. I hope I'm clear with what we learned today. Any other query that you wish to ask from this chapter? Okay, it helps to share the experience and help others. Vaibhav, correct? Anything else? I have told you 100. I have always few students have messaged me regarding the WhatsApp group. So I'll add them after the class and I'll share all the content once again. PPT of all the 8 chapters. Okay, anything else that you want to you people want to ask or share or kuch bhi, please drop your answers in the chat box. कुछ पूछना है? So shall I end my class then? I'm unable to see the answers. I hope the slides are still visible to you. So in this chapter, we talked about entrepreneurship, qualities, features, functions. We talked about social entrepreneurship, difference between the two, what are the characteristics of social entrepreneur, challenges faced by social entrepreneurs, example, difference between entrepreneurship and intrapreneurship. Then we studied about the business ideas, feasibility study, project appraisal, etc. So I hope all these points are clear to you. Please let me know in case of any problem. I'll share the PPT just now within after ending the class and adding few people in the group. I will immediately share the PPT. In case you have any other problem, please let me know now. Else we will meet tomorrow and we'll start with chapter number 9. Shall I end my YouTube channel for what? I didn't get you what you have asked. I can't see the queries.
Process of entrepreneurship. Okay, I'll explain it once again. Just wait. Let me open the PPT. हम entrepreneurial प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो आई वाज सेइंग कि entrepreneurial प्रोसेस होता है जहां पर सबसे पहले आप एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो कि yes, this opportunity could be very well converted into a business. Then the idea is generated. So amongst all those ideas, you select one or two ideas, you conduct a feasibility study on it, you prepare a project report, you prepare a business plan, and then you execute it. Okay, and before again executing your entire program, you undertake few studies, few surveys ki whether there is actually a demand of this particular product or not, whether this would be fruitful to the entire organization, to the society as a whole or not. Then identifying your current resources, uh, identify your, financial resources, physical resources, how much funds do you have, how much technology do you have, uske basis pe you accordingly work in that area. Okay. So I hope I am clear to you all. So we'll meet tomorrow in the next class. I'm sharing, let me add few students in the group, and after that I'll share the PPT of chapter 8. Tomorrow we'll do the PPT of we'll do chapter number 9 in our tomorrow's class. So be there at 3 o'clock. Okay, take care and stay safe.